مسیحا کے مبارک جلالی اور افضل ترین نام میں، جس کا نام تمام ناموں سے افضل اور اعلیٰ ہے، اور جس جیسا نام کسی اور کو بخشا نہیں گیا، وہ جو کل آج بلکہ اب تک یکساں، الفا اور اومیگا، اول و آخر، ابتدا اور انتہا، اور بہت جلد بادلوں پر ہماری نجات کی کامل امید بن کر آ رہا ہے، اس خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں اور سامعین کی خدمت میں یہ خاکسار خادم آج شب پھر آداب بجا لاتا ہے۔ جتنی بھی پرستش کی گئی، دعائیں کی گئی ہیں، ہماری سکائپ پر جو میٹنگ پریزائیڈ کی گئی ہے، اس سب کچھ کے لیے سارا جلال خداوند اپنے خدا کو ہم دیتے ہیں۔ وقت آ گیا کہ خداوند کے مقدس کلام کو ہم سیکھیں۔ مزامیر میں ہم ہیں اور زبور 51 یعنی 51 سے ہم سیکھ رہے ہیں۔ گزرے کل ہم نے پہلی 7 آیات پر ایک اور خادم کے وسیلہ سے سیکھا تھا۔ آج ہم 8ویں آیت سے 13 آیت تک اس محدود سے وقت میں سیکھیں گے، لیکن قبل اس کے کہ میں 8 سے 13 ان آیات کو تلاوت کروں، تھوڑا سا پس منظر بیان کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ زبور کی کتاب میں یوں تو تمام کے تمام 150 مزامیر اپنی جگہ پر بہت بہت اہم حیثیت رکھتے ہیں اور اہم مقام ہے ان کا، لیکن اس کے باوجود کلیسیا کو کئی ایسے مزامیر ہیں ان 150 میں سے جن کے نمبرز انہوں نے رٹے ہوئے ہیں، یعنی اتنے معروف ہیں۔ مثلا زبور 1 ہو گیا، 23 زبور ہو گیا، 22 زبور بھی ہے، اور اس کے بعد 16 زبور بھی ہے، 51 زبور بھی ہے، 91 یعنی 91 زبور بھی ہے، 136 زبور بھی ہے، 139 زبور بھی ہے، اور یہ تمام مزامیر ایسے ہیں جن سے کلیسیا اچھی طرح سے واقف ہے، بہت معروف ہے۔ اور کئی ایسے لوگ ہیں جب کسی مشکل یا پریشانی میں ہوں تو 91 زبور کی وہ رٹ لگاتے یعنی پڑھتے ہیں۔ میں یہ مشورہ نہیں دوں گا رٹ لگانے والی، لیکن ان مزامیر کی سمجھ کر تلاوت کرنا یہ بہت ضروری اور اہم ترین بات ہے۔ جب میں اس زبور کے ٹائٹل پر بات کرتا ہوں تو 51 زبور کی پہلی آیت ابھی شروع نہیں ہوتی، تو اس سے پہلے ہی اس زبور کا جو متن ہے اس کو متعارف کروایا جا رہا ہے روح القدس کی تحریک سے۔ یاد رکھیں کہ یہ داؤد کا زبور ہے، میر مغنی کے نام۔ پاسبل ہے اسرائیل کے وقت میں یہ پرستش کرنے والوں کا لیڈر ہوا ہو، لیکن جو بھی ہے خدا کے حضور یہ زبور گایا جا رہا اور عبرانی شاعری میں تلاوت کیا جا رہا اور پڑھا جا رہا ہے۔ اس زبور کی بابت یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ کون سے واقعات اور حالات کو پیش کرتا ہے۔ لکھا ہے اس کے یعنی داؤد کے بتسبا کے پاس جانے کے بعد، جب ناتن نبی اس کے پاس
आया। उसके बाद ये जबूर लिखा गया। कितना अरसा बाद मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि इस जबूर में दाऊद का इकरारे गुनाह है और बिल्कुल क्लियर कट, और सीना तान कर खुदावंद के हुजूर बुजुर्ग दाऊद अपने पाप का, अपने गुनाह का, अपनी खता का इकरार कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जब बत्सबा के साथ पाप हो गया, और हम जानते हैं कि उसके बाद जब बुजुर्ग नातन नबी खुदा की तरफ से दाऊद के पास आते हैं और बताते हैं एक तमसील के जरिया से कि आपने ये पाप किया है, तो उसके बाद दाऊद खुदा के हुजूर अपने उस पाप का और उस गुनाह का इकरार करते हैं। वो गुनाह जो बत्सबा और उसके शौहर ओरिया हित्ती के साथ हुआ था। जब हम उस दर्दनाक और खौफनाक दास्तान को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि क्या हुआ। आप बाद में चाहें तो दूसरा शमूएल और इसकी 11 और 12 दो अबवाब की आप तलावत कर सकते हैं, तो वाज़े तौर पर आपको मिलेगा कि हुआ क्या था। लगता है कि दाऊद के इस पाप में गिरने के शायद 1 साल बाद टाइम पीरियड गुजरता चला गया। बत्सबा के साथ जिनाकारी हुई और उसके बाद वो उम्मीद से हुई, और यहां तक कि वो बेबी भी पैदा हो गया। लेकिन इससे केवल के ऐसा हो, दाऊद ने इस साल के दौरान कोशिश की कि मेरा पाप और मेरा गुनाह किसी तरह से अंडर कारपेट यानी छिप जाए और किसी को मालूम ना हो। आप जानते हैं कि उसके शौहर ओरिया हित्ती को बुलाया गया और उसको उसके घर भेजा गया ताकि ये जो अल्जाम है मुझ पर ना आए, बल्कि ये समझा जाए कि उसके शौहर यानी ओरिया का ये बेबी है। आप जानते हैं कि मां बाप दाऊद ने उस ओरिया हित्ती का भी काम तमाम करवा दिया। जंग में उसको सफे अव्वल में रखकर उसका खून करवा दिया। ये पाप किसी भी तरह से छिप नहीं पाया। 1 साल तक शायद दाऊद ने कोशिश की कि ये छिपा रहे। बहुत कोशिश की गई कि ये पाप अंडर कवर हो, लेकिन मैं ये कहूंगा कि खुदा जिसके हुजूर ये पाप हुआ था, उसकी निगाह से कोई जगह छिपी हुई नहीं थी। इवन जहां दाऊद और बत्सबा जिस कमरे में थे, खुदा वहां भी सब कुछ उसकी निगाहों में था। और या हित्ती के साथ जो कुछ किया गया, खुदा उस सब कुछ से बाखबर था। है कोई ऐसी जगह जो खुदा की निगाहों से छिपी हो? खुदाया तेरी रूह तू में बला नस के किधर जावा, हुजूरी तेरी तू छिप के मैं केड़ी तरफ नो नसा। वो हम जा हाजिर है, हर जगह मौजूद है। हम सारे जहान
से चश्म पोशी करके पाप करें तो कर सकते हैं, करना नहीं चाहिए। लेकिन हो सकता है कि कोई भी मुझे नहीं देख रहा, लेकिन इसके बावजूद कोई होता है जो देख रहा होता है कि क्या हो रहा है। और जब खुदा ने देखा कि ऐसा हुआ, तो फिर नातन को तैयार किया कि वो आए और बुजुर्ग दाऊद से आकर वो बात करे। और जब ये भेद दाऊद पर खुला कि ये अब छिप नहीं सकता जो पाप मैंने किया, तब बुजुर्ग दाऊद ने खुदावंद के हुजूर अपने गुनाह का इकरार किया और अपने गुनाह से तौबा की। और यह जबूर उस वक्त लिखा गया कि दाऊद ने कैसे खुदा के हुजूर आकर अपने पाप और अपनी गलती और अपनी खता और अपने गुनाह को माना है। यह जरूरी बात है कि हम जाने कि दर हकीकत इस जबूर में दाऊद का खुदा के हुजूर इकरार गुनाह है। एक और बात, जबूर 51 की यानी पहली आयत से लेकर आखिरी आयत 19 आयत तक कोई यह कह सकता है कि दाऊद ने क्लियरली अपने पाप का इकरार नहीं किया। क्लियरली से क्या मुराद है? यह क्लियरली कि मैंने बत्सबा के साथ ऐसा किया या मैंने उसके शोहर को मैदान जंग में मरवा डाला, यह इकरार उसने क्लियरली नहीं किया। वह एक तो बात यह है कि इस जबूर का जो टाइटल है वही इस बात का जवाब देता है कि यह कब जबूर लिखा गया। उस वक्त जब दाऊद ने इस गुनाह के बाद खुदा के हुजूर इकरार किया। दूसरी बात, दाऊद ने ना सिर्फ यहां पर अपनी खताओं और गुनाहों का इकरार किया, ना सिर्फ अपनी खताओं का, बल्कि अपने गुनाहों का इकरार किया जिसमें ये तमाम गुनाह मौजूद थे। खा वो बत्सबा वाला था या ओरिया हित्ती को मरवा डालने वाला था। यह अहम तरीन बात है। तो क्योंकि दाऊद की जिंदगी में यह बुजुर्ग दाऊद ही जानते हैं कि सिर्फ ओरिया हित्ती वाला या सिर्फ बत्सबा वाला ही पाप नहीं था। अगर बुजुर्ग दाऊद ये कहते, ऐ याहवे, मैंने बत्सबा के साथ ऐसा किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने उसके शौहर को मरवा डाला जो मुझे नहीं करना चाहिए था, इसलिए मैं अपने पाप का तेरे हुजूर इकरार करता हूं, तो फिर जो ठट्ठाबाज हैं वो ये कहते कि अच्छा, तो दाऊद ने फिर बत्सबा वाला इकरार किया और वो जो कत्ल किया था उसका इकरार किया, तो बाकी गुनाह दा की होएगा? फिर ओदा इकरार ते उन्हें नहीं किया। इसलिए बुजुर्ग दाऊद ने यहां पर अपने इज्तमाई खताओं और गुनाहों का खुदा के हुजूर इकरार किया जिसमें यह सब कुछ शामिल था। अगर उसकी जिंदगी में सिर्फ बत्सबा या ओरिया हित्ती की बात होती तो वो डायरेक्टली इन दोनों को हाईलाइट करता, लेकिन और भी थे। और फिर जब हम इस सबूर को पढ़ते हैं तो शायद दाऊद की जिंदगी की मिसाल को लेते हुए
ہم یہ کہیں نہیں 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 نہیں، میں یہ اقرار نہیں کروں گا، میں تھوڑا ہی کوئی زناکار ہوں، میں تھوڑا ہی کوئی قاتل ہوں، میں نے تو ایسا نہیں کیا ہے، میں کیوں اقرار کروں، میں نہ قاتل ہوں نہ میں زناکار ہوں۔ ٹھیک ہے صاحب، شکر ہے کہ یہ دونوں کام شاید نہیں ہے، لیکن کیا کوئی اور پاپ بھی نہیں ہے؟ کیا کوئی اور گناہ بھی نہیں ہے؟ اگر ہم اپنی زبان کو اس طور پر استعمال کرتے ہیں کہ دوسروں کو گھاؤ لگتے ہیں کیونکہ یہ زہر قاتل سے بھری ہوئی ہے، تو کیا ہم نے قتل نہیں کیا؟ اگر ہم اپنے بھائی کو پاگل کہتے ہیں تو کیا ہم صدر عدالت کے لائق نہیں ہیں؟ کیا ہم اپنی سوچوں سے، اپنے خیالوں سے، اپنی زبان سے، اپنے اعمال سے کچھ بھی نہیں کرتے؟ اگر قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے تو مبارک ہو، لیکن ان باقیوں کا کیا ہوگا جو ہم صبح سے لے کر شام تک آج پورے دن کی بابت ذرا سوچ کر دیکھیں تو صحیح کہ کہاں کہاں ہم نے ڈنڈی ماری اور خدا کے روح کو رنجیدہ کیا۔ یہی تو سبب ہے کہ بزرگ داؤد اجتماعی گناہ کا اقرار کرتے ہیں، کسی ایک گناہ کا نہیں۔ اگر میں اور آپ آج اقرار کریں تو کسی ایک گناہ کا ہم نہیں کریں گے، کیونکہ پتہ نہیں، ہم پتہ ہے بھی کہ کتنے گناہوں کا ہم خدا کے حضور اقرار کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں۔ کل شاید ایک صاحب نے واٹس ایپ پہ ایک امیج بھیجی، کاش کہ میں ابھی دیکھ سکتا، لیکن وہاں پر یہ تھا، اس امیج میں یہ تھا کہ وہ شخص جو گناہ نہیں کرتا، وہ خدا اس کو پسند کرتا ہے۔ ایسا شخص جو گناہ نہیں کرتا، خدا اس کو پسند کرتا ہے۔ میرا بلڈ پریشر تھوڑا سا ہائی ہو رہا تھا، کیونکہ میں یہ سوچتا تھا کہ کون ہے اس دنیا میں جو خدا کے اس سٹینڈرڈ اور اس معیار کو کے مطابق پورا اتر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو اس کا مطلب خدا کسی سے بھی پیار نہیں کرتا؟ نو، ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم جیسے بھی ہیں، اگر خدا کے سامنے کھلی کتاب کی مانند ہے تو وہ ہمیں ایکسپٹ کرتا اور قبول کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، یہ جو امیج لکھی ہوئی تھی، میں مثال دے کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر بچہ گندگی نہ کرے تو پھر والدین اس کو پسند کرتے ہیں۔ کیا کوئی بچہ ہے جو گندگی نہ کرے؟ جب میں اور آپ چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارے پیٹ سے کوئی غلاظت نہیں نکلتی تھی، ہم ڈسپوزیبل تھے۔ نو اینڈ نیور۔ لیکن ہمارے والدین نے ہماری گندگی سے نہیں، ہم سے پیار کیا ہے، اور جو پھینکنے والی چیز تھی اس کو پھینکا۔ خدا گناہگار سے پیار کرتا ہے، لیکن گناہگار کے گناہ سے پیار نہیں کرتا۔ ہم اس بات کو سوچیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ وہ جو پرانے عہد میں ہے، وہ بائبل مقدس کی وہ آیت نکال کر پیش کرتے ہیں کہ مبارک ہے وہ جو اپنے گناہ کو ترک کرتا ہے۔ یہ خدا کے کلام کی بات ہے،
लेकिन हम अब मसीह से पहले वाले जमाने में नहीं हैं। अब हम मसीह के बाद वाले जमाना में हैं। हमें खुली छुट्टी नहीं है कि हम पाप करते फिरें, लेकिन यह जरूर है कि हम जाने कि कोई भी ऐसा शख्स इस दुनिया में नहीं जो अपने पाप को तर्क करके खुदा के हुजूर मकबूले नजर हो। अगर हो सकता ते भाई जी फिर यसू दे आन दी लोड़ कड़ी पाई सी। ये बातें समझने से ताल्लुक रखती हैं, इल्मी तौर पर हमें जानने की जरूरत है। आयत नंबर 8 यहां पर लिखा हुआ है, मुझे खुशी और खुर्रमी की खबर सुना ऐ याहवे। मुझे खुशी और खुर्रमी की खबर सुना, ताकि वो हड्डियां जो तूने तोड़ डाली हैं शादमान हूं। याद कीजिए कि इससे पेशतर कि इस आयत पर हम जाएं, आयत 4 में हम गौर कर चुके हैं ऑलरेडी, आज तो नहीं गुजरे कल, कि दाऊद कहते हैं ऐ खुदा मैंने क्या किया, फकत तेरा ही गुनाह किया। जबकि यह बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि बुजुर्ग दाऊद ने बत्सबा के खिलाफ भी गुनाह किया। उसके साथ दाऊद ने जो हित्ती ओरिया था उसका भी गुनाह किया। दाऊद ने शरीयत के खिलाफ भी किया है। दाऊद ने उस वक्त के कानून के मुताबिक भी किया है। दाऊद ने अपने खानदान के बरखिलाफ भी गुनाह किया, और दाऊद ने अपने बदन के बरखिलाफ भी गुनाह किया। याद रखिए, जब भी हम कोई गुनाह करते हैं वो ना सिर्फ खुदा की जात के बरखिलाफ है, बल्कि वो औरों के बरखिलाफ भी है। हम इस बात को जाने, और अगर हम खुदा से मुआफी तलब करते हैं तो लाजिम है कि जिसके खिलाफ जिसके साथ किया उससे भी मुआफी तलब करें, तभी दुआ रब्बानी पढ़ सकते हैं, वरना नहीं पढ़ सकते। इस 8 आयत के मुताबिक जब दाऊद ये फरमाते हैं कि मुझे खुशी और खुर्रमी, इन दोनों के माना शादमानी के ही है, मुझे खुशी और मसरत अनायत फरमा, और जो तूने मेरी हड्डियां तोड़ डाली हैं वो फिर शादमान हूं। वल खुदा ने कहीं भी एक लोहे का आसा लेकर या बांस का एक डंडा लेकर दाऊद की हड्डियां नहीं तोड़ी थी। बात यह नहीं है, यह दाऊद का अपना इजहार बयां है कि मैंने खुदा को कितना नाराज किया, मैं शिकस्ता दिल हो गया हूं, मैं टूट गया हूं ऐ खुदा तेरे हुजूर। यूं लगता है जैसे मेरी हड्डियां और मेरा जिस्म चूरा बन गया। ये अलामती तौर पर बुजुर्ग दाऊद यहां पर बात कर रहे थे कि मेरी शिकस्ता हाली पर निगाह कर, और मुबारक है वो जो खुदा के हुजूर शिकस्ता हाल होता है और खुदा फिर उसको मरहम पट्टी करता है। तो कहा ऐ खुदा मुझे खुशी और खुर्रमी अता कर, ताकि मेरी हड्डियों में फिर से शादमानी हो, सर ता पा मेरे पूरे बदन में फिर से खुशी और मसरत की लहर दौड़ आए। और आयत 9, मेरे गुनाहों की तरफ से, याद कीजिए यहां पर गुनाह नहीं लिखा, यहां पर सीगा जमा
गुनाहों ये लिखा हुआ है। इसका मतलब वो अपने सारे गुनाहों का खुदा के हुजूर इकरार कर रहा है। मेरे गुनाहों की तरफ से अपना मुंह फेर ले। ऐ खुदा, मेरे गुनाहों की तरफ से अपने मुंह को फेर ले। क्यों? हबक्कूक की किताब में लिखा है, खुदा की आंखें ऐसी पाक हैं कि वो बदी को देख नहीं सकता और कजरफ्तारी पर निगाह नहीं करता। अभी चंद ही दिन पहले हमने मुनज्जिए आलमीन की मसलूबियत के मंजर पर बात करते हुए यह देखा कि जब सारे जहान का मेरे और मेरे भाई तेरा और मेरी बहन तेरे गुनाहों का बार जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर उठाए थे तो इलाही जात ने भी अपना चेहरा फेर दिया था। अगर यूं ना होता तो फिर मेरे और आपके पापों और गुनाहों का फिदिया ना होता। इस हकीकत को हम जाने तो कहा, मेरे गुनाहों की तरफ से अपना मुंह फेर ले और मेरी सब बदकारी मिटा डाल। मेरी सब बदकारी। मैं बार बार ये जब लफ्ज आता है तो ये कहा करता हूं कि बद के माना बुरा है और कार से मुराद काम है। पुश्तू जबान में कार के माना काम के हैं। बदकार से मुराद बुरा काम और बदकरदारी या बदकारी, या जब हम किसी के लिए बदकार का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा शख्स जिसने कोई ऐसा काम किया है जो अच्छा नहीं है। बदकारी या बदकार किसी एक गुनाह की तरफ इशारा नहीं है, यह हर किस्म के गुनाहों की तरफ इशारा है। और बुजुर्ग दाऊद कहते हैं, ओ जैसे मेरे गुनाहों से ए खुदा तू पाक है, बदबू आती है मेरे गुनाहों के जख्मों से, अपना मुंह फेर ले और ए खुदा मेरी इस बदी को मिटा डाल। बारहा बार बुजुर्ग दाऊद इस जबूर में अपने पाप का इकरार करते हुए नजर आते हैं। 10 और 11 वो कहते हैं, ऐ खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर। खुदावन मैंने अपने कामों से अपने इस दिल को नापाक किया। सख्त दिल था और मैंने सख्त दिल होकर वो किया जो तेरी शान के बरखिलाफ है। और मुझे एक हवाला याद आ रहा है, हिजकियल नबी की किताब 36 बाब और उसकी 26 आयत, जहां खुदा ये कहता है, मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और गोश्तीन दिल तुमको अनायत करूंगा। हालेलुया। हमारा खुदा हमारी सख्त दिली को, पत्थर दिली को, संग मेहरी को निकालता है अगर हम खुदा के साथ खुली किताब की मानिंद रास्त हो जाएं तो। और वो हमें फिर एहसास रखने वाला दिल बख्श देता है। और बुजुर्ग दाऊद ने कहा, मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर। ये जो पाक दिल पैदा कर, इसके लिए जो इब्रानी जबान में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है 12, जो तखलीक के लिए
खल्क करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। और पैदाइश की किताब की पहली आयत में ही पैदा किया के लिए लफ्ज 12 इस्तेमाल हुआ है इब्रानी में। गोया ए खुदा तू मेरे अंदर एक नया दिल पैदा कर दे, मैंने इस दिल को आलूदा किया है। और मेरे भाइयों और बहनों, हमारे अपने दिल की बाबत क्या ख्याल है? कैसा है हमारा दिल? मैं अपने आप की बाबत सोचता हूं, और तू जहां कहीं है अपने दिल की बाबत सोच के तेरा दिल कैसा है, नापाक या पाक? सोचना है। और दाऊद ने कहा, मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर, एक नया दिल। गोया यूं लगता है कि जब दाऊद से पाप हो गया, उनके अंदर चैन नहीं था। खुदा के लोगों से जब कोई गलती हो जाए, खुदा के लोगों आप जानते हैं, जब कोई गुनाह हो जाए उसके बाद भले वो सबसे छुपाते फिरे, लेकिन खुदा का रूह उनके अंदर जो सेंसर लगा हुआ है वो बीप 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 करता रहता है, जब तक कि खुदा के हुजूर उसका इकरार नहीं होता और मुआफी की यकीन दहानी हो नहीं जाती। और फिर दाऊद ने क्या कहा इसी आयत के अगले हिस्से में? और मेरे बातन में, मेरे अंदर, इस पिंजरे में, मेरे बातन में इस सरेनो मुस्तकीम रूह डाल। क्योंकि दाऊद इस बात को जानते थे कि मुझे मुआफी के बाद एक नए रूह की भी जरूरत है, एक मुस्तकीम दिल की मुझे जरूरत है। ए खुदा, मैंने अपने कामों से आपके रूह को रंजीदा किया। पौलुस रसूल कहते हैं, और खुदा के रूह को रंजीदा ना करो और रूह को ना बुझाओ। हम अपने आप को भी जरा परखें ना साथ साथ। दाऊद का गुनाह तो हमें बहुत याद आता है, उसने ये किया था, उसने ये किया था, आदम ने ये किया था। ऐसी बड़े खुदा है गया है ना। हमें अपने आप की बाबत सोचने की जरूरत है कि हम कौन हैं। और 11 आयत में, मुझे अपने हुजूर से खारज ना कर। खुदा बदी को पसंद नहीं करता। हो गई तो अदन से उस कपल को निकाल दिया था, अपनी हजूरी से खारज कर दिया था। हां, खुदा ने अपनी रहमत और अपने फजल से वापसी का इंतजाम भी किया है, जो मसीह के वसीला से हुआ, और सिर्फ मसीह के वसीला से। लेकिन जब तक बदी और गुनाह है और इकरार नहीं होता, हम खुदा की हुजूरी से खारज होते हैं। और दाऊद कहते हैं, मुझे अपनी हजूरी से खारज ना कर। वह बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अहद अतीक में हम पर कई पहलुओं से फिट आती है और कई फिट नहीं आती। यह बात आज इस नए अहद के ईमानदारों के लिए जरा उस तौर पर फिट नहीं आती कि ए खुदा, मुझे अपनी हुजूरी से खारज ना कर, क्योंकि मसीह यीशु पर ईमान लाने के वसीला से हमें कबूल किया गया है। और यीशु मसीह ने कहा, जब कोई मेरे पास आए तो मैं हरगिज उसको निकाल ना दूंगा। पुराने अहद और नए अहद की बाबत समझना बहुत जरूरी है। पुराने अहद की हर एक बात मसीह पर ईमान लाने के बाद हम पर हर एक बात फिट नहीं आती, बहुत सारी आती है, लेकिन हर एक बात की बाबत थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा
क्योंकि हम नए अहद के फर्जंद हैं, उस पुराने अहद के फर्जंद नहीं हैं। और वो कहते हैं 12वीं आयत में, बल्कि 11वीं आयत के दूसरे हिस्से में, और अपनी पाक रूह को मुझसे जुदा न कर। वही बात कि अगर पाक रूह मुझसे जुदा हो गया, रंजीदा हो गया, रूह को ना बुझाओ, अगर मेरे कामों के सबब से बुझ गया, तो मैं अपने इकरार और तौबा की दिया सलाई से उस रूह को फिर से जिला बख्श सकता हूं। और यही खुदाबंद हमसे चाहते हैं। आयत 13, 12 और 13, 12 आयत में लिखा है, और अपनी निजात की शादमानी मुझे फिर अनायत कर। ओहो, देखिए, फिर से वही बात मैं कहूंगा, वो लोग जो ईमानदार हैं, माफ कीजिए जरा टाइम ज्यादा हो गया, वो लोग जो ईमानदार हैं, जब उनसे गुनाह हो जाता है, अगरचे किसी को भी अगर पता नहीं ना, वैसे हो नहीं सकता, लेकिन अगर किसी को भी पता ना चले, फिर भी ईमानदार के दिल के अंदर यह विसल बजती रहती है पाक रूह की तहरीक से कि तूने पाप किया है, तूने गुनाह किया है, और उसका खुदावंद के हुजूर इकरार कर। और फिर रूह कुछ बुझी बुझी नजर आती है जब तक कि यह कर्ज चुका ना दिया जाए तो। और बुजुर्ग दाऊद यही कहते हैं, ऐ खुदा, मैंने पाप किया, मेरी निजात की शादमानी, वो मसरत, वो खुशी, मेरे चेहरे की रौनक अब जाती रही है। फिर से मुझे लौटा, क्योंकि मैं अपने पापों का और अपने गुनाहों का इकरार करता हूं। और लिखा है, मुस्तैद रूह से मुझे संभाल, मुझे अपना रूह बख्श, ऐसा रूह कि मैं हर वक्त मुस्तैद रहूं, तैयार रहूं वो करने के लिए जो आप चाहते हैं। और आखिरी आयत आज के लिए, ऐ खुदा, जब ऐसे होगा तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं खताकारों को तेरी राहें सिखाऊंगा। मुझे नहीं मालूम कि दाऊद ने खताकारों को कुछ राहें सिखाई हैं कि नहीं, गुनाहगारों को खुदा की तरफ माइल किया कि नहीं, मैं इसके बारे में नहीं जानता। मुमकिन है कि किया हो, लेकिन मेरे लिए और आपके लिए यह सोचने का मकाम है कि जब हम अब खताएं बख्शी गई, तो उसके बाद हम दूसरों को वो राह बताते हैं जो वाहिद राह है, यीशु मसीह यूहन्ना 14:6 के मुताबिक। अगर नहीं बताते तो इसका भी हमें खुदावंद के हुजूर इकरार करने की जरूरत है। और लिखा है, और गुनाहगार तेरी तरफ रुजू करेंगे जब मैं दूसरों को ये सदाकत की राहें सिखाऊंगा। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हम अपनी जिंदगी पर जरा गौर करें और देखें, बुजुर्ग दाऊद के इस इकरार के मुताबिक अपने आप को तोलें और परखें। खुदावंद के हुजूर झुककर, लापरवाही से नहीं, अपनी आंखों को हम बंद करें, खुदावंद की हजूरी को महसूस करें। अगर पाक रूह हमारी जिंदगी में किसी पाप और गुनाह पर या पापों और गुनाहों पर उंगली रखता है, तो केवल इसके के ज्यादा देर हो जाए, केवल इसके के आप बेड पर जाएं, आए हम अपने इस पाप का खुदावंद के हुजूर इकरार करें। आसमानी बाप, इसमें कोई शक नहीं कि हम वो गुनाहगार हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके फजल के वसीला से बचे हैं।
हमारा दुश्मन अबलीस हर रास्ते पर शोकेस सजा कर बैठा हुआ है। बाप मुमकिन कीजिए कि हम उसके फंदे में ना फंसने वाले हों, बल्कि आपके पाक नाम को जलाल देने वाले हों। खुदा बाप अपने बेटे यीशु मसीह नासरी के वसीला से हमारे पापों और हमारी खताओं की दस्तावेज को मिटा दीजिए। माफ कीजिए प्यारे आसमानी बाप, हमारे वो गुनाह, वो तकसीरें जो हर रोज हमसे हो जाती है। और अब आप जितने भी मेरे सामीन और नाजरीन इस बाइबल स्टडी में शरीक हैं, अपना रूहानी आईना उन्होंने इस कलाम के मुताबिक देखा है, अगर वो भी आपके हुजूर इकरार करते हैं, खुदा बाप उन्हें मुआफ फरमाइए और यस्सु के नाम से हर बीमारी और दुख और तकलीफ और लानत मुकम्मल तौर पर दूर हो जाए और आपके लोगों के दिलों में शादमानी, खुर्रमी, मसरत और खुशी आ जाए, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के वसीला से। आमीन एंड आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे जब खुदावंद की पाक और मुकद्दस मर्जी होगी। तब तक के लिए खुदा निगहबान।